Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. So students, let's start our today's EVS class, and today we are going to start chapter number 12, that is recreational activities and games. Students, you know that games are very important for us. Games keeps us our body fit and healthy, and by playing games we can recreate ourselves. Recreational activities refresh our minds and give us energy. So let's start our today's EVS class. Dear students, let's start our today's EVS class, and in this class we are going to learn about chapter number 12, that is recreation and games. So let's talk about the meaning of the chapter. What is the meaning of recreation? तो recreation का मतलब होता है कि हम किस तरीके से थकने के बाद अपने आप को रिक्रिएट कर सकें, यानी कैसे अपने आप को हम रिफ़्रेश कर सकें, कैसे रिलैक्स कर सकें। तो जब हम थकने के बाद रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिक्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम काम करके लगातार काम करके जब थक जाते हैं तो हम अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, यानी रिफ़्रेश करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। सो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आर ऑफन डन फॉर enjoyment, amusement or pleasure and are considered to be fun. And the meaning of games you know very well. Games का मतलब होता है खेल। सो खेलना भी एक तरह का रिक्रिएशन ही है। So students, in this chapter we are going to learn about recreational activities and different type of games. So let's start our today's EVS class. Dear students, games are very important for us. Games and other recreational activities are necessary for an all-round development of an individual. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि गेम्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि अगर आपसे ही कहा जाए कि आपको आज से खेलना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है, सो हाउ डू यू फील? You not feel good, because games are very important for us. You know that any kind of game is a good means of exercise for the body. So that's why games, they help us to improve our blood circulation, memory, eyesight and keep us fit. So that's why games play a very important role in our life. Now students, you know that in today's busy lifestyle, people have no time to relax or entertain themselves. तो आप जानते ही हैं, आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कितने बिज़ी होते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी लाइफ को एकदम बिज़ी कर दिया है। इट मीन्स वी डोंट हैव इवन ए सिंगल टाइम टू रिलैक्स आवर सेल्फ. सो दैट्स वाई वी नीड सम टाइम टू रिक्रिएट आवर सेल्फ. So let's move toward recreational activities. So students, now it is clear that we all need some time to relax and recharge ourselves. The free time which we get for relaxation is called leisure. तो हम सबको थोड़ा टाइम चाहिए ताकि हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें या रिचार्ज कर सकें, और वो फ्री टाइम जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स या रिचार्ज करते हैं, उस फ्री टाइम को हम लेज़र कहते हैं. नाउ पीपल इंडल्ज इन वेरियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग देयर लेज़र टाइम. दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फ्री टाइम होता है या जो लेज़र टाइम होता है, उसमें हम अपने आप को कई सारे एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं या अपने आप को कई सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं. यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, रिचार्ज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट. दिस हैबिट इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव. तो बुक्स की रीडिंग करके हम अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं और उससे बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ भी हम लर्न करते हैं.
Now, a puppet show or a drama conveys a message along with entertainment. So, it is also a good way to recreate ourselves. A family can also spend time together while watching TV programs. So, watching television and listening to radio is one of the recreational activities. Nowadays, playing, surfing, shopping, and chatting on the internet is very popular among people. Outdoor entertainment like fairs, amusement parks, circuses, flower show, art exhibition, etc. are also the source of recreation. Music and dance is the universal language of the world. Listening to music and learning to play musical instrument are pleasant means of recreation. So folk dances like Ghumar are also a source of joy. Nowadays, some communities organize cultural programs, fairs, and feasts during festivals. Arts and craft activities and summer camps also engage people in a fruitful way. So, these all are recreational activities by the help of which we can make ourselves relax and recharge. Students, let's talk about games. Games keep us healthy and active. They help us to relax and enjoy. We learn the value of discipline, responsibility and sacrifice. तो गेम्स जो है हमें हेल्दी बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं और गेम्स खेल करके यानी गेम्स के थ्रू और यू कैन से दैट बाय प्लेइंग गेम्स वी जस्ट मेक आवर सेल्फ रिलैक्स एंड वी इंजॉय ऑल्सो. नाउ गेम्स ऑल्सो टीच अस वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन यानी गेम्स हमें वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, जैसे हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और हमारे अंदर सैक्रिफाइस यानी त्याग होना चाहिए. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी. तो गेम्स के थ्रू हम डिसिप्लिन लर्न करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से पूरा करना है, निभाना है, वो लर्न करते हैं और हमारे अंदर त्याग की भावना भी डेवलप होती है गेम्स के थ्रू. दे ऑल्सो टीच अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड टीम वर्क. सो गेम्स हमें ये भी सिखाते हैं कि किसी भी खेल को या किसी भी गेम को जीतने के लिए हमें अपने एम को सेट करना होगा, हमें अपने गोल को यानी लक्ष्य को सेट करना होगा. गेम्स हमें प्रेरणा सिखाते हैं कि किसी भी गेम को विन करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है. डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण. तो जब तक हमारे अंदर त्याग, समर्पण या डेडिकेशन नहीं होगा तब तक हम किसी भी गेम को जीत नहीं पाएंगे. तो इसलिए हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए. एंड टीम वर्क यानी हम जो भी करें, अगर हम एक टीम में हैं तो हमें पूरे टीम के लिए खेलना होगा, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं खेलना होगा, हमें पूरे टीम के लिए खेलना होगा, पूरे मन से उस गेम को खेलना होगा, तभी हम जीत पाएंगे. इसी को टीम वर्क कहते हैं. यानी हम जो भी काम करें ऑनेस्टली के साथ पूरे टीम के लिए करें. स्पोर्ट्स यूनाइट पीपल एंड इनकरेज द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन देम. तो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को एक साथ जोड़ करके रखता है और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को भी इनकरेज करता है यानी कि बढ़ावा देता है. सो I hope the importance of games is clear to you. Students, let's talk about types of games. So, two type of games we have: indoor games and outdoor games. तो इंडोर गेम्स का मतलब हुआ क्या? इन यानी अंदर और डोर यानी डोर के अंदर. तो जो गेम्स हम बिल्डिंग में या कवर्ड कोर्ट, स्टेडियम के अंदर खेलते हैं उसको हम इंडोर गेम्स कहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इंडोर गेम्स. सो गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड अ कवर्ड कोर्ट, स्टेडियम और अ बिल्डिंग आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. फॉर एग्जाम्पल टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, चेस, एक्सेट्रा.
Now let's talk about outdoor games. So games which are played on open grounds, courts, etc. are called outdoor games. तो जो गेम्स हम ओपन ग्राउंड्स में या ओपन कोर्ट्स में खेलते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा. Students, let's talk about some more types of games. In games like golf, billiards, shooting, racing, etc., sport people participate as individuals. Such games are called individual games. तो ऐसे गेम्स जिसमें स्पोर्ट पीपल इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हों उन्हें हम इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं. In these games, the participants win on the basis of their own strength and hard work. Games like football, hockey, cricket, basketball, and volleyball are played in teams, and thus these are called team games. A healthy team spirit often leads to victory. So it means that we have to play for whole team, not for ourselves. तो अगर हम पूरे टीम के लिए एक साथ मेहनत करेंगे, मेहनत से खेलेंगे पूरी टीम के लिए, तभी हम उस गेम को विन कर पाएंगे, जीत पाएंगे. सो दैट्स वाई वी मस्ट हैव ट्रू टीम स्पिरिट एंड देन ओनली वी कैन विन एनी गेम. Badminton and tennis are two games which are played both as an individual game and a team game. तो बैडमिंटन और टेनिस ये ऐसे दो गेम हैं जिसको या तो इंडिविजुअल भी खेला जाता है या फिर टीम के साथ भी खेला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट national games. A country's national game is a game that is linked with the culture of that country. तो किसी भी कंट्री का जो नेशनल गेम होता है वो उसके कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, उसके कल्चर से लिंक्ड होता है. A national game is played by a large number of people with a lot of enthusiasm. तो enthusiasm का मतलब होता है a strong excitement of feeling. So definitely जो नेशनल गेम्स होते हैं उसको बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं, ग्रेट फन के साथ खेलते हैं, ग्रेट इन्जॉयमेंट के साथ इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो उनकी कंट्री का क्या होता है, नेशनल गेम होता है. तो इसलिए वो उसको एक्साइटमेंट की फीलिंग के साथ खेलते हैं ताकि उन्हें उस गेम को जीतना है. India has many national teams for different sports which compete against the national team of other countries. तो हमारे कंट्री में भी यानी कि इंडिया में भी बहुत सारे नेशनल टीम्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के नेशनल टीम के साथ बहुत ही ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं और उनको हराते भी हैं. सो ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स etc. are some of the international sporting events. So students, list of national games of countries given below in the table. So you have to go through table and read about them. For example, Afghanistan cricket, America United States American football, Australia cricket, Bangladesh kabaddi. So in this way different tables are given here and you have to read the name of country as well as their national games. So different tables are given in this video. You have to go through all these tables and you have to learn it. Students, let's talk about team spirit. तो टीम स्पिरिट का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटी, यानी टीम के हर एक मेंबर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए. टीम स्पिरिट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द टीम मेंबर्स. यानी टीम के हर मेंबर के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, सपोर्ट और कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि टीम के मेंबर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें और एक दूसरे को कोऑपरेट करें.
then only they have a true team spirit. तभी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी टीम के अंदर टीम स्पिरिट पॉसिबल होगा अगर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें और हमेशा अपनी टीम के लिए खेलें, अपने लिए नहीं। द हेड ऑफ द टीम इज कॉल्ड द कैप्टन और द टीम लीडर। तो जो टीम का हेड होता है उसको कैप्टन या फिर टीम लीडर कहा जाता है। द कैप्टन लीड्स द टीम and encourages the other team members to give their best performance in the game। तो कैप्टन का काम होता है कि वो अपनी टीम को लीड करे, यानी आगे बढ़ के अपने टीम को इनकरेज करे और किस तरीके से गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है उसके लिए भी गाइड करे। सो इन दिस वे वी कैन बिल्ड a team spirit inside a team members. Let's talk about local games. Some games are played only in certain regions and become the popular games of that particular region. So students, कुछ games ऐसे होते हैं जो particularly किसी region में या किसी area में खेले जाते हैं और उसी एरिया के पॉपुलर गेम के नेम से इन्हें हम जानते हैं। अब जो इस गेम के प्लेयर होते हैं वो या तो कोच या फिर टीचर द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं, जिन्हें अक्सर गुरु के नाम से जाना जाता है। नाउ इन आवर कंट्री वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल गेम्स लाइक मलखंभ। It is a sport that involves the traditional form of gymnastics on a pole or a rope. So, just see the picture. मलखम्भ जो होता है उसमें जो जिमनिस्ट होता है वो पोल और रोप के हेल्प से परफॉर्म करता है। Now, next we have wrestling. So, it is an important sport in India. It is also termed as Pahalwani and the wrestlers are called Pahalwans. This game is usually performed in akhadas. तो पहलवानी या कुश्ती वाले गेम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, इन्हें अखाड़ास में खेला जाता है। Other traditional games include kabaddi, kho-kho and boxing. So these are the local games of our country. Students, let's talk about martial arts. Martial arts teach us the art of self-defense and help in keeping us physically and mentally fit. तो मार्शल आर्ट हमें सिखाता है कि हम कैसे अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें, यानी अपनी रक्षा खुद कर सकें, एंड ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अस फिजिकली एंड मेंटली फिट। यानी मार्शल आर्ट से हम अपने सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिसाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Judo and karate are also played in India. So students, this is all about the chapter, and today we have completed our chapter number 12. Dear students, that's all for today's class. Today we have completed chapter number 12. If you have any doubt regarding any topic which I taught you today, then you can call me, or you can write in class group also. So students, in next class we will start our next chapter, that is chapter number 13. Till that, keep smiling and keep yourself free from infection. Thanks for watching this video.